حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پر رہے، اور آپ کے ادوار کے فتوحات کی اگر ایوریج نکالیں تو ایک دن میں 80 مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے، آپ کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا، یہ بہت بعد کی کہانی نہیں بلکہ 92 ہجری کی کہانی ہے، اور اس وقت تو صحابہ بھی موجود تھے۔ ادھر اندلس کے دروازے پر طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے جو کہ تابعی ہے، اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے۔ مسلمان ادھر سندھ تک پہنچ گئے اور ادھر اندلس تک پہنچ گئے۔ آپ چین جا کر دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں ہے۔ ما براہ النہار علاقہ بھی فتح ہو چکا تھا۔ ادھر آرمینیا پر قبضہ ہوا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں عظمتوں کی کیسی داستان رقم ہوئی۔ ڈاکٹر اقبال بول اٹھے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم دولت کی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی معقول بات نہیں۔ اگرچہ اس دور میں معیشت ایک اہم چیز ہے، جو لوگ معاشی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن امت مسلمہ کی زوال کا سبب معیشت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادیں معادیت سے مضبوط نہیں کی گئیں، اس کی بنیادوں میں تو روحانیت رکھی گئی ہے۔ امت مسلمہ کی زوال کا سبب صرف اور صرف دین سے دوری ہے۔ اس امت کی پستی اور رسوائی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتے کو کمزور کر لینا ہے جس مرکز نے ان کو عزت دی، سرفرازی دی، تعظیم اور توقیر فراہم کی۔ رہی بات غربت و عمارت کی تو اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے یہ چیز ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں اس زمانے کی کہانی بھی یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، پیبند لگے ہوئے لباس پہنتے تھے۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور ہمارے مقابل جو دشمن تھے ان کے پاس 100 زرہ پوش نوجوان تھے۔ 950 کی تعداد میں ان کا لشکر تھا۔ ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھیں، کھانے پینے کے سامان بھی فراہم اچھی مقدار میں تھے، اور ادھر فاقہ کش لوگ جو جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے تھے پھر اسی کھجور کو چوس کر روزہ افطار کرتے۔ کیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امیر آدمی تھے؟ کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے؟ کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مالدار شخص کا نام ہے؟ پیبند لگے ہوئے لباس پہننے والے فاقہ کش لوگ کیا عمرہ کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو اسلام کی غربت کی وہ کہانی بھی یاد ہے کہ جب احد میں 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے کے لیے 2 چادریں لے کر آتی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس قبر میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کیا جائے، اور فرمایا میرے چچا کے لیے اس کی بہن جو کفن کی 2 چادریں لائی ہے ان میں سے ایک چادر ہم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ مکہ میں ایک امیر ترین خاتون ہے، اس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنی اچھی خوشبو اور عطر لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کر گیا ہوگا، اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اور جب مصعب پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے۔
सहूलतें और आसूदगियां भी वापस कर लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु हबशा की जानिब हिजरत फरमा जाते हैं। मक्का के हालात जब कुछ खुशगवार नजर आए तो वह हबशा से वापस जब मक्का आए तो उनके बदन पर जो चादरें थीं वो जगह जगह से फटी हुई थीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कहा, ये वही मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु है जो इतना खुशपोश जवान था कि मैंने पूरे मक्का में इससे ज्यादा खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा। और आज मेरे मुसअब के पास पहनने के लिए 2 चादरें हैं, वो भी जगह जगह से फटी हुई हैं। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। आज ओहद में वही मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे चचा के लिए जो 2 चादरें आई हैं उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो और दूसरी चादर से मेरे चचा को कफन दे दिया जाए। हजरत मुसअब रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो चादर थी वो छोटी थी। अगर सर ढांपते तो पांव नंगे हो जाते थे और अगर पांव ढांपते तो सर खुल जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे चचा का सर ढांप दो और पांव के ऊपर घास डाल दो। मैं आपको इस्लाम की गुर्बत की वो कहानी सुना रहा हूं। जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के लिए कफन का पूरा कपड़ा भी दस्तयाब नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया था, इस्लाम उस वक्त भी जलील नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी सरबलंद था, इस्लाम उस वक्त भी इज्जतों की मसनदों पर था। ये इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। चेहरे पर अजीब उदासी है। कहा, अबू बकर उमर इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज के हुजूर, भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। हमने सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देख लें तो कुछ भूख मिट जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा हाल भी यही है। जिस चीज ने तुम्हें घर से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है। चलते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर से गुजरे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशबू पाकर वो बाहर आ गए। अर्ज की, हुजूर आज मेरे मेहमान नहीं बनेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी मर्जी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को घर ले गए, चटाई बिछाई, हुजूर को बिठाया और घर वालों को बकरी का बच्चा ज़िबा करके दिया। कहा, जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मेरे आका अलैहिस्सलाम को भूख लगी है। ये कहकर वापस आए और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठे। नजर चेहरे पर पड़ी तो घबरा गए। नकाहत के आसार इतने वाज़े थे कि समझ में आ रहा था कि कितने दिनों से हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं खाया। उठकर बाग में गए, खजूरों का गोशा तोड़ा और हुजूर के सामने रखा। कहा, हुजूर या रसूल अल्लाह, नबी का अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक खाना तैयार नहीं होता ये खजूरें तनावुल फरमाएं। थोड़ी देर के बाद खाना दस्तरखान पर लग गया। हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई, हुजूर आइए खाना तनावुल फरमाएं। हुजूर दस्तरखान पर तशरीफ लाए और कपड़ा उठाया तो देखा कि खाना है। हुजूर ने एक रोटी ली और चंद बोटियां उठाई और एक खादिम को बुलाकर कहा, जाओ हमारे घर दे आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी है। मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आपको पता होगा कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो उनकी एक ज़रा एक यहूदी के घर गिरवी रखी हुई थी। यह है इस्लाम की गुर्बत की कहानी। और फिर इस्लाम को अल्लाह ने इमारत के रंग भी दिए। आओ तुम्हें कहानी सुनाऊं। हजरत अदी बिन हातिम रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी में हदीस मौजूद है। यह हातिम ताई के बेटे हैं। कहते हैं, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर गुर्बत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है, मैं पसमानदगी का शिकार हूँ। फिर एक दूसरा शख्स आया और कहने लगा, हुजूर मेरे पास दौलत तो है लेकिन मुझे जिस मंजिल पर पहुंचना है उसका रास्ता पुरखतर है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं कैसे रास्ता तय करूं? उन 2 लोगों ने ये बातें की तो हजरत अदी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने रूगे सुखन मेरी जानिब मोड़ा
اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کہ حضور دیکھا نہیں لیکن اس کا تذکرہ سنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو دیکھنا ہیرا سے ایک خاتون چلے گی اور مکہ تک پہنچے گی، اللہ کے گھر کعبے کا طواف کرے گی، اس کو ہیرا سے لے کر مکہ تک اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب پر اپنا روب جمع رکھا ہے۔ کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو دیکھے گا کہ کسریٰ کے خزانے یہاں تیری جھولی میں ہوں گے جو اس دور کی سپر پاور طاقت تھی۔ میں نے کہا حضور کسریٰ کے خزانے؟ کہاں کسریٰ کے خزانے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عدی اگر تو نے زندگی پائی تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا سونا چاندی لے کر نکلے گا لیکن اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے ایک خاتون چلی اور مکہ تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیسری چیز میں نہ دیکھ سکا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ تو میں نہ دیکھ سکا لیکن اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم لوگ ضرور دیکھنا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے وہاں سے زکوٰۃ وصول کی، پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا لیکن مجھے کوئی مستحق نہیں ملا تو میں غلام پکڑتا اور اس کو پیسے دے کر آزاد کر دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کا ایک گورنر تھا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم جمع ہو گئی ہے اس کا کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رقم لے کر یہاں نہ آنا بلکہ عراق کے لوگوں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان میں تقسیم کر دینا۔ گورنر لکھتا ہے جو مستحق تھے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں، اب کیا کروں؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ ادھر سے گورنر لکھتا ہے میں نے قرض بھی اتار دیا ہے پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ ادھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لکھا جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ گورنر لکھتا ہے میں نے وہ بھی کر دیا پھر بھی بچ رہی ہے، اب کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہے جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دوگنے پیسے ان کو قرض دے دو اور کہو جاؤ اس سے کاروبار کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ قرض کی فکر نہ کرنا، زیادہ پریشان نہ ہونا، جب دے سکو دے دینا۔ تو یہ دور بھی اسلام نے دیکھا کہ زکوٰۃ کے مستحقین ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے، اور وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ جب اہل اسلام نے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لیے لقمہ بھی نہیں تھا لیکن اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں میں ریشم بکھرا پڑا رہتا تھا کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، دین غربت میں بھی غالب تھا، دین امیری میں بھی غالب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے ایک خاتون چلی اور مکہ تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کر کیوں رہ گئی؟ آج ہمارا تماشا کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ آج بھوکے کتوں کو ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور ان کا تماشا دیکھا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ لہذا دولت کی قلت و کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں،
हमने तारीख में देखा है कि हम कभी माली तौर पर कमजोर थे लेकिन रुसवा नहीं हुए। रुसवाई के असबाब कुछ और हैं। आओ तुम्हें इस्लाम के उरूज की दिल आवेज कहानी सुनाऊं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में जलवा अफरोज होते हैं तो अल्लाह का घर 365 बुतों से भरा हुआ है। दुनिया में खुदा का पहला घर है और 365 बुतों का कब्जा है। उस घर में हुजूर अलैहिस्सलाम आए और दावत दीन दी और आका अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की गंदगी से खाना काबा को पाक किया। कहानी इतनी दिल आवेज है कि हुजूर अलैहिस्सलाम नबूवत के ऐलान के 13 साल गुजारने के बाद मक्का से हिजरत करके मदीना रवाना हुए तो उस वक़्त मुसलमानों की तादाद 100 के करीब थी। जिन लोगों ने हिजरत की उनकी तारीख पढ़ी। 2 हिजरी में बदर मकाम पर हक व बातिल का पहला टकराव होता है। मुसलमानों की तादाद 313 थी और जो घरों में बच्चे और खवातीन थे उनको शामिल कर लें तो 600-700 लोग होंगे। और 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ तो फतह मक्का के मौके पर मुसलमानों के सिपाहियों की तादाद 10,000 थी। और फिर 10 हिजरी में हज्जतुल विदा होता है और 10 हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जो लोग बैठकर खुतबा सुन रहे थे उनकी तादाद 1,44,000 थी। और जो लोग घरों में थे उनको भी मिलाएं तो 6 लाख तक पहुंचती है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल 2 माह और कुछ दिन तख्ते खिलाफत पर रहे और आपके अदबार के फुतूहात की अगर एवरेज निकालें तो एक दिन में 80 मुरब्बा मील इलाका रोजाना फतह होता है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर देखिए। आपके जमाने में इस्लामी हुदूद 23 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आया, ये बहुत बाद की कहानी नहीं बल्कि 92 हिजरी की कहानी है। और उस वक़्त तो सहाबा भी मौजूद थे। उधर अंदलुस के दरवाजे पर तारिक बिन ज़ियाद दस्तक दे रहा है जो कि ताबई है और ये भी 92 हिजरी की कहानी है। मुसलमान इधर सिंध तक पहुंच गए और उधर अंदलुस तक पहुंच गए। आप चीन जाकर देखें, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र वहां है। मां बराहुन नहार इलाका भी फतह हो चुका था। इधर आर्मीनिया पर कब्जा हुआ। इस थोड़े से अरसे में अजमतों की कैसी दास्तान रकम हुई। डॉक्टर इकबाल बोल उठे, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज जबले तारीख को जाकर देखो, जहां वो 500 लोग निकले थे, वक्त के हुक्मरान ने अपने जासूस को भेजा कि देख कर आ वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और कितनी तादाद है। जासूस ने देखा और जाकर कहा पता नहीं, जमीन से निकले हैं या आसमान से उतरे हैं। उनकी तादाद तकरीबन 500 है। फिर उन 500 लोगों ने यूरोप के दरवाजों में दाखिल होकर हक व बातिल के सुमारके में वो अजीम दास्तान रकम की कि डॉक्टर इकबाल खिराज पेश करते हुए कहता है, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सिराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को दावत देते हैं कि आप मदीने से चलें और बैतुल मक़दिस पहुंचे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से चलते हैं, कितना बड़ा काफिला लेकर, सिर्फ हजरत उमर और साथ में एक गुलाम है और एक ऊंट, बारी बारी ऊंट पर सवार होते हैं। कभी गुलाम सवार होता है और कभी उमर सवार होते हैं। हुक्मरान तो ये थे कि जो लोगों की दहलीज तक अमन पहुंचाते थे, लोगों की चौखट पर नूर बांटते थे। और एक आज के हुक्मरान हैं जो तुम्हें रमजानुल मुबारक में बेवकूफ बनाकर तुमसे वोट हासिल करते हैं और हम भी उनके नापाक खानों के चक्कर में आकर उनको हाकिम बना देते हैं। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे तड़प रहे हैं और हमारे जवान सिसक रहे हैं। आओ तुम्हें हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी सुनाऊं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो तख्ते हुकूमत पर बैठते थे,
उनका तख्त कोई सोने चांदी का नहीं था, बल्कि मस्जिद नबवी की चटाई थी, और सारा दिन वहां बैठकर लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे हो जाते तो उमर भेष बदलकर मदीने की गलियों का गश्त करते। एक दिन एक घर के पास पहुंचे जहां बच्चे रो रहे थे। करीब गए तो एक औरत को देखा, कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, इनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी उमर की जान के लिए रो रही हूं। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। पूछा क्या हुआ? उसने कहा 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हांडी के अंदर पत्थर डालकर नीचे आग जलाती रहती हूँ ताकि बच्चे इंतजार करके सो जाएंगे, कम वक्त सोते भी नहीं हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा दहलने लगा। फौरन वापस पलटे और बैतुल माल में आए, घी लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाले वगैरह उठाए, अपने कांधे पर रखे और बोरी अपनी कमर पर ला दी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल माल से निकले तो आपके खादिम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका लाइए, मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू हैं। कहा असलम क़यामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? खादिम ने कहा क़यामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उमर को आज अपना ही बोझ उठाने दो। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु घी और आटे की बोरी उठाए उस खातून के घर पहुंचते हैं। वो जब देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है। वो आटा गूंथती है और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों से सब्जी तैयार कर देते हैं। इधर आटा गूंथ जाता है तो वो रोटी पकाने लग जाती है। जब आग बुझती है, तारीख में लिखा है कि हजरत उमर झुक झुक कर फूके मारते हैं। जब खाना पक गया और बच्चों को खिला दिया, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों और पांवों को जमीन पर लगाकर जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इसी तरह कभी इधर चलते हैं कभी उधर चलते हैं ताकि बच्चे मुझे देखकर खुश हों और दिल में कहते हैं उमर जितना रुलाया है अब उतना हंसाना भी पड़ेगा। ये कोई और नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन है। मैं आज के लोगों के वोटों पर मुंतखब होने वाले किसी हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, जो आधी दुनिया का बादशाह है। मैं उसकी कहानी सुना रहा हूं। जब बच्चे खुश हो जाते हैं उसके बाद हजरत उमर उस खातून से कहते हैं ए खातून उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमुक को फस्ता तो हलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफ्द से मुलाकात भी करता होगा और सबको मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। कहते हैं मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा उमर की बात मेरे सामने न कर, क़यामत का दिन होगा, उमर का गरीबा होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कह ले जो कहना है, क़यामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? फरमाया हाँ उमर तेरे सामने खड़ा है। हजरत उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फिलिस्तीन की तरफ निकले। एक ऊंट है और एक गुलाम है। कभी गुलाम ऊंट पर सवार होता है और कभी आप सवार होते हैं। जब आप फिलिस्तीन के करीब पहुंचे तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की थी और गुलाम की बारी सवार होने की थी। गुलाम ने कहा आका मैं अपनी मर्जी से बारी छोड़ता हूं, आप बैठ जाएं, दुश्मनों के फतूहा इलाके आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाके फतह हुए हैं, आप सवार हो जाएं ताकि इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान और शौकत इस तरह जाहिर नहीं होती है, तुम अपनी बारी में बैठोगे और मैं अपनी बारी में बैठूंगा। लोग मुंतजिर खड़े हैं। दूर से जब देखा तो कहने लगे जिसकी हैबत से हम कांपते थे ये वो है, ये तो कोई हबशी मालूम होता है, रंग काला है, होठ मोटे हैं, इससे ज्यादा हसीन तो इसका गुलाम है जो आगे आगे चला आ रहा है। हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अरे लोगों तुम धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊंट पर सवार है, बल्कि हमारा आका तो वो है जो लगाम थामे आगे आगे चला आ रहा है। हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने
हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तकबाल किया। हजरत उमर आगे बढ़े और अबू उबैदा के दोनों कांधों पर अपना हाथ रखा। सुनो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा। कहते हैं फरमाया, ए अबू उबैदा बिन जर्राह, हम एक जलील कौम थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की है, और अब मैं तुम्हें तारीख साज बात कह रहा हूं, और वो ये है कि जब तक हम इस इज्जत वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे हमारी इज्जत कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज्जत ढूंढेंगे तो रुस्वा कर दिए जाएंगे। ये है वो खुलासा जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मतों के उरूजो जवाल का बयान फरमाया। इस उम्मत को जो तख्तो ताज की खैरात मिली है वो कहीं और से नहीं मिली, बल्कि मोहम्मद अरबी के सदक़े में मिली है। मैं दुनिया के मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम वापस उसी इज्जतों को पाना चाहते हो, उसी मसनदों को पाना चाहते हो, उसी ताजो तख्त को पाना चाहते हो, तो फिर से नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामी में आना पड़ेगा, नबी के दामन को मजबूती से थामना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हें वापस से फिर वही इज्जतों से नवाज देगा।